What repeats matters. Hey guys, let's begin with the Done Understood series presented by Medicine. Laser focused on PYQs. I said it once and I'd say it again because need. What repeats matters. So hey guys, let's begin with the Done Understood series. इस सीरीज में हम नीट 2025 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. सो नीट 2025 के पेपर में हम यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे with proper explanation, no fluff. The first question states, in the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at ECOR1 site. यहाँ पर एक alien piece of DNA हमने insert किया. जब भी हम alien piece of DNA को insert करते हैं तो क्या होता है? Insertional inactivation. LAC-Z जो है, यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाली जीन है LAC-Z, ये inactivate हो जाएगी. That means it will not be producing its effect. So इसके वजह से क्या होगा? दो तरीके के यहाँ पर सिचुएशंस अराइज करेंगे. एक तो ये कि यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑकर्ड और एक होगा कि विदाउट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो क्या होगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ तो LAC-Z will not produce beta galactosidase and as a result of which chromogen will not show chromogens as stated by NCERT. They won't get hydrolyzed, no hydrolysis. अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हुई तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगी. कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगी, दैट मीन्स इट विल बी वाइट. ओके, एंड इफ डज नॉट ऑकर दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगी. ओके, देन यहाँ पर क्रोमोजेन विल गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर कॉलोनीज. सो इन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, ब्लू कलर कॉलोनीज grow on ampicillin plates can be selected. यार ampicillin resistance and tetracycline resistance genes are intact in both the situations. तो ये तो दोनों में ही होंगी, तो that is not a demarcating factor. तो blue color colonies will be selected. No, blue color colonies will not be selected because it's a case of insertional inactivation. तो इस केस में हम लोग ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे. The second question states, the protein portion of an enzyme is called apoenzyme, prosthetic group, cofactor, coenzyme. तो यार देखो, एंजाइम जो होता है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं एज एनसीईआरटी स्टेट्स, और होलो एंजाइम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एपोएंजाइम प्लस अ कोफैक्टर. So we can say it a cofactor. A cofactor consists of what? Coenzyme and prosthetic group, or it can be metal ion. Okay. So what is a coenzyme? Coenzyme and prosthetic group both are organic compounds. Okay. Both are organic, but the coenzyme is transiently bound. Transient attachment is there in this case, while in this case of prosthetic group there is a tight attachment. They are tightly bound. Okay. All these are increasing what? The catalytic activity. Okay. So there are various questions in the PYQ that asks about the coenzyme, prosthetic group or metal ion, which are a subpart of cofactor. So this part is the protein. This part regulates the catalytic activity. So we will go with the apoenzyme. Given below are two statements. Statement 1, the primary source of energy is in an ecosystem is solar energy. तो यार सन जो है हमारे पास is the main source of energy. ये तो करेक्ट है. The rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. Rate of production of organic matter है यहाँ पे, है ना. तो rate of production of organic matter को क्या हम net primary productivity कह सकते हैं क्या? एकदम नहीं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि net primary productivity is gross primary productivity minus of respiratory losses. तो यहाँ पर respiratory losses को तो अकाउंट में लिया ही नहीं. एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए है, नॉट फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो विल से दैट स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is incorrect. Given below are two statements. One is labeled as assertion, the other is labeled as reason. तो यार assertion reasons के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, should always be taken care of before attempting. यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड. तो ये अनफर्टिलाइज्ड है एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो एंड इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड. सो व्हाट डज इट मीन? देखो, ये हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल हो गए, एक चलाजल एंड पे, एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 2 साइनर्जिड्स, और ये हो गया मेन सेल. यहाँ पर हो गया 2 हमारे पास, ये एक सेल हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियर. ओके, सो बेसिकली ये हो गया हमारे पास सेंट्रल सेल. ओके, सो यहाँ पर कह रहा है कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल. तो देखो कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो दिस इज 7 सेल
and 8 nucleate, there are 8 nucleus. Yeah, so the first statement assertion is true. The egg apparatus has 2 polar nuclei. यार इसे हम egg apparatus कहते हैं, which is at the micropylar end. Okay, micropylar end पे होता है ये, and this is the polar nucleus part. यहाँ पर polar nuclei है, so the reason is incorrect. इस केस में हम लोग जाएंगे option 1 के साथ. The assertion is true but the reason is false. The neoplastic characteristics of cell refers to. यार देखो neoplastic, neoplasia ये क्या होता है? ये होता है mass of proliferating cells with rapid outgrowth. तो यार नियोप्लाज्म ये सब जो होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेल है जो अपोप्टोसिस छोड़ दिया है, जिसमें अपोप्टोसिस अब नेचुरल सेल साइकिल का जो नेचुरल सेल डेथ है वो नहीं हो रहा है. सो अब क्या होगा कि ये ओवर ग्रो करेगा एंड इट विल रीच टू द नेबरिंग टिश्यूज एंड एरियाज एंड इट विल लीड टू व्हाट, that means it's a malignant tumor basically which will lead to cancer. Okay, so this is something that will cause invasion and damage to the surrounding tissues. This is correct, but those confined to original location, यार original location पे तो benign होता है ना, and benign is not neoplastic. Okay, so we'll go with A, B and C only. D won't be included. So moving on to the next question, which one of the following is the characteristic feature of gymnosperms? यार देखो gymnosperms, gymno means क्या होता है? Naked, and sperms means what? Sperms means seed. So in this case seeds are absent, बिल्कुल भी नहीं. Gymnosperms have flowers for reproduction. Flowers तो होते हैं हमारे पास angiosperms में. So even this statement is incorrect. Seeds are enclosed in fruits. ये भी एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट फॉर जिम्नोस्पर्म्स. सीड्स आर नेकेड इन जिम्नोस्पर्म्स. यार देखो फ्रूट्स होने का क्या मतलब होता है? एक ओवरी वॉल होगा, एंड इन दिस केस देयर इज नो ओवरी वॉल. सीड्स आर नेकेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. देखो मैच द फॉलोइंग है. फर्स्ट देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन किसके साथ जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के साथ, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम ही तो बनाता है ना. आफ्टर द ovulation, rupture of the Graafian follicle, we get the corpus luteum, and this corpus luteum is the one which is secreting the progesterone. Relaxin is secreted from the ovary. A का 4, B का 2 दोनों में आ रहे हैं. Now talking about melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone is from pars intermedia, MSH. ये तो pituitary gland की pars intermedia से रिलीज होती है. Then comes catecholamines. Catecholamines are what? These are secreted from adrenal medulla. Fight and flight response के लिए these are responsible. So देखो कभी भी हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे तो इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं. अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, बट अदरवाइज अगर मैं इसे अटेम्प्ट करता तो मैं ऐसे करता. देखो यहाँ पर मैं डी से स्टार्ट करता. मान लो कैटेकोलामीन्स इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन. इट विल गो विथ एड्रेनल मेडुला. तो डी का 3 जा रहा है एंड द रेस्ट विल फॉलो इन टू प्लेस, क्योंकि यहाँ पे देखो डी का 3 तो जा रहा है, सी का 1 भी जा रहा है, तो मुझे अब सी भी देखने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या देखूंगा एग्जाम के टाइम में? मैं डायरेक्ट अब बी या ए से कंपेयर कर लूँगा. चलो ए से ही कर लेते हैं. ए में क्या है? ए का 4 होना चाहिए. सो द ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. सो दैट्स हाउ वी सेव टाइम एंड एलिमिनेट चॉइसेस. विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस में है? देखो यार क्रोमोसोम नंबर 1, एनसीईआरटी स्टेट्स की क्रोमोसोम नंबर 1 में 2968 जीन्स होती हैं, वेयर एज इन क्रोमोसोम वाई वी हैव 231 जीन्स. सो हाईएस्ट हमारे पास क्रोमोसोम 1 में होता है एंड लीस्ट हमारे पास क्रोमोसोम वाई में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुबिस्को इज ट्रू? यहाँ पे रुबिस्को के रिलेटेड क्वेश्चन है. रुबिस्को इज व्हाट? रुबिस्को इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट? तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट, इसका काम क्या होता है? मोस्टली इसका काम तुम लोग देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में है. लाइक देखो RUBP जो होता है, राइट, RUBP को CO2 जब मिलता है तो ये रुबिस्को के प्रेजेंस में क्या करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA 3-phosphoglycerate बनाता है. सो दिस इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रुबिस्को. सो इट इज एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्वड इन फोटोलिसिस. नहीं, फोटोलिसिस तो तुम्हारा लाइट रिएक्शन में होता है ना. It's not the light reaction, so it catalyzes the carboxylation of RUBP. Catalyzes the carboxylation of RUBP. This is the right option, and it activates only in the dark. It is active only in the dark. So ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि light reaction is the one which occurs in the light, but dark reaction is the one which does not depend on the presence or absence of light.
So this is vague. It has a higher affinity for oxygen than carbon dioxide. It's also false. We'll go with this. The first menstruation is called first menstruation, right? So first menstruation is called menarche. It is the onset of puberty that results into menarche, and menopause is what it is occurring mostly around 50 years of age. And यहाँ पर होता क्या है कि the menstruation cycle stops permanently, permanent cessation, and ovulation तो basically होता है कि release of ovum from the Graafian follicles. Diapause. What is diapause? Diapause is basically a developmental delay, that is a temporary cessation of the development. Which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly? Eli Lilly was an American company and it occurred in around 1983. Okay, so यहाँ पर हुआ क्या था, ह्यूमन इंसुलिन है जिसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, तो ह्यूमुलिन जो है या ह्यूमन इंसुलिन है, इसे क्या किया गया था कि इसके जो जीन्स हैं उसे इकोलाई में डाला गया था, विच वॉज अ बैक्टीरिया, और ए स्ट्रैंड एंड बी स्ट्रैंड सेपरेटली बनाकर उसे एक जगह कर दिया गया था, दैट वुड रिजल्ट इन इंसुलिन. ओके, क्योंकि हमें पता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि ए पेप्टाइड होता है, बी पेप्टाइड होता है एंड सी पेप्टाइड होता है. तो जो प्रो इंसुलिन होता है इसमें सी पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है, बट नॉर्मली क्या होता है, ए एंड बी रहता है, राइट? तो ये सी पेप्टाइड को हम लोग कट कर देते हैं एंड ए एंड बी रिमेन्स देयर. Given below are two statements, one is labeled as assertion, the other is labeled as reason. All vertebrates are codates, but all codates are not vertebrate. देखो यार, कोई भी वर्टिब्रेट है तो वो कोडेट हो सकता है, लेकिन हर कोडेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता. क्यों? देखो, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कोडेट्स होते हैं. क्यों होते हैं वर्टिब्रेट्स कोडेट्स? क्योंकि यार वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायोनिक लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, बट हर कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होता. लाइक हर कोडेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं हो सकता है. क्योंकि जैसे एग्जांपल ही ले लो ना, यूरोकोडेट हो गया जिसमें सिर्फ लार्वल टेल में रहता था नोटोकॉर्ड और वो भी गायब हो जाता था, एंड देन सिफलोकोडेट जिसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. एनसीईआरटी स्टेट्स दीज थिंग्स. तो इस केस में हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी कह दिया कि ये असर्शन तो कंप्लीटली ट्रू है. The member of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. It is completely true, and the reason completely satisfies the assertion. So in this case, we'll go with option 3. What is the main function of spindle fibers during mitosis? देखो यार, spindle fibers are constituted of microtubules, and ये क्या करते हैं? ये attach करते हैं kinetochores पे, which are the protein discs at the centromere. इसकी वजह से क्या होता है कि at during anaphase what happens is that they will pull the chromosomes apart. So they are used for what? To repair the damaged DNA? No. To regulate the cell growth? No. To separate the chromosomes? Exactly. To synthesize new DNA? Not really. Match the list 1 and list 2. यहाँ पर देखो, Alfred Hershey and Martha Chase दोनों ने क्या किया? They gave an unequivocal proof of DNA being the genetic material, right? तो A का 4 हो रहा है. Now euchromatin. Euchromatin is what? It's the loosely packed and lightly stained. And then comes heterochromatin, which is densely packed and darkly stained. Euchromatin क्या होता है? देखो, euchromatin and heterochromatin, these are basically what? These are क्रोमोसोम के क्रोमेटिन ही है. एक लाइट है और एक एकदम डीपली है, एकदम बहुत ज़्यादा वाइंड अप है. तो ये हमारे पास E है यूक्रोमेटिन, एंड ये हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन हो गया. ठीक है, तो दिस विल बी ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव एंड दिस विल बी रिलेटिवली इनएक्टिव. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसने क्या किया था यार? ये तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल लाया था ना, यूजिंग द स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी. तो इस तरीके से हमने इसे कर दिया. सो देखते हैं विच ऑप्शन मैचेस. ए का 4, बी का वी हैव 3. देखो यार, यहाँ पर ही वी गॉट टू नो कि ऑप्शन 1 होने वाला है. नो फर्दर मैचिंग. चलो देखते हैं ये क्या है. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. एडेनोसिन है हमारे पास, एडेनिन है, एलेनिन है, एडेनाइलिक एसिड है. सो लेट्स बिगिन विथ एलेनिन. एलेनिन क्या है? एक एमिनो एसिड है जिसमें आर की जगह पे क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, राइट? सो ये हो जाता है हमारे पास एक एमिनो एसिड. एडेनिन इज व्हाट? एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, वेल एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड एडेनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड. सो एडेनोसिन को हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड. एंड एडेनाइलिक एसिड को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में जब हमने क्या लगाया? फॉस्फेट ग्रुप लगाया, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड. जब भी हम लोग 5 प्राइम पोजीशन ऑफ कार्बन पे
फोस्फेट लगाते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे कंफ्यूज करते हैं काफ़ी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4 हो रहा है, सी का 1 हो रहा है, एंड देन वी हैव बी का 2 एंड एडेनोसिन का 3। Question 1. In a frog, the renal portal system is a special venous connection that acts a link to. तो यार renal portal system एक तरीके का क्या है? स्पेशल वीनस कनेक्शन है। स्पेशल वीनस कनेक्शन इन द सेंस व्हाट? सिस्टम ऑफ वेसल्स दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि रेनल पोर्टल सिस्टम एक स्पेशल कनेक्शन तो है, लेकिन ये क्या है कि किडनी और इंटेस्टाइन के बीच में है क्या? नहीं। किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यस, एनसीईआरटी स्टेट्स इट्स द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये तो हमारे पास हेपेटिक पोर्टल था ना। टू टेल यू वन थिंग कि हेपेटिक पोर्टल भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग्स के अंदर। इवन दिस इज इनकरेक्ट, सो विल गो विथ ऑप्शन 2। विच इज द फॉलोइंग are the post-transcriptional events in an eukaryotic cell? Transport of pre-mRNA to the cytoplasm prior to splicing. तो ट्रांसपोर्ट होता है क्या प्रायर टू स्प्लाइसिंग? बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है एक्चुअली में? स्प्लाइसिंग जो भी होता है प्रोसीजर्स दे ऑकर इन द न्यूक्लियस, इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड देन आफ्टर द स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग ये सब हो जाता है, कैपिंग टेलिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद द मैच्योर mRNA इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये तो होता ही है, इसी को तो स्प्लाइसिंग कहते हैं। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स एट दी 5 प्राइम एंड, इसको कैपिंग कहते हैं। एडिशन ऑफ एडेनाइन रेसिड्यूज, पोली ए टेल को हम लोग लगाते हैं ना 3 प्राइम एंड पे। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री आरएनए, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री आरएनएज। यार आरएनएज के 2 कम्प्लीमेंट्री जो रहते हैं उसे हम लोग बेस पेयर करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। यार यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में तो कभी भी आरएनए को हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इट विल गो फर्दर फॉर ट्रांसलेशन। देखो यार, कभी भी अगर देखोगे कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर जुड़ रहे हैं तो ये आरएनए इंटरफेरेंस का केस होता है, दैट इज नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए तो नहीं होगा, बी सी डी होना चाहिए। PCR amplifies DNA following the equation। तो यार देखो, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है एंड दिस वन इज क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल। तो बेसिकली हमारे पास PCR जो है वो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है एंड इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, DAE, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ये प्रोसेसेस के साथ गुजरता है। इसमें टैग पॉलीमरेज एक इम्पॉर्टेंट थर्मोस्टेबल एक पॉलीमरेज है जो कि हेल्प करता है एक्सटेंशन में। Given below are 2 statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The assertion states, both wind and water pollinated flowers are not very colorful. तो यार जो भी wind and water pollinated flowers हैं, they don't need to be colorful. ये एक चांस फैक्टर है, it is a chance factor. स्टेटमेंट करेक्ट है, what we can say is ये दोनों अबायोटिक एजेंट्स हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी वाली चीज हो जा रही है, उनको कलरफुल होने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो द रीजन स्टेट्स, नाउ द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amounts of pollen grains in wind and water pollinated flowers। ये assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। देखो तो ये क्या रीजन assertion को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिकॉज फ्लावर्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनाते हैं विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एनसीईआरटी ने ये कहा है कि पोलन ग्रेन्स दैट आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, तो जो भी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, दिस इज अ चांस फैक्टर इन केस ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स टू कंपेंसेट फॉर दिस लॉस। तो इतना ज़्यादा लॉस जब हो रहा है ना कि पोलन ग्रेन्स जो है ये चांस फैक्टर से आ रहे हैं, तो ये यार ये तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि आ जाएगा, ये तो हवा के थ्रू या वाटर के थ्रू आ रहा है ना स्टिग्मा के पास एंड देन टुवर्ड्स द ओवरी। तो ये जो एक फैक्टर रह रहा है ना कि ये जो पोलन ग्रेन्स है इसकी अमाउंट अगर कम हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी घट जाएगी इस बात की कि पोलिनेशन सक्सेसफुल होगा। इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, इतना ज़्यादा लॉस ना हो इसके लिए क्या होता है कि इनर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। तो इस वजह से बनता है, किस लिए? टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, नॉट दैट
कि दे आर नॉट वेरी कलरफुल, द फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें रीज़न सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। So we can say in this case that both assertion and reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion. The next question states, epiphytes that are growing on the mango branch is an explanation of which of the following? तो ये एपीफाइट्स जो कि ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच के ऊपर, एपीफाइट्स इन द सेंस व्हाट, ऑर्किड्स एज स्टेटेड बाय एनसीईआरटी। तो एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने कि यार ऑर्किड्स जो होता है एक तरीके का एपीफाइट है जो कि ग्रो करता है मैंगो ट्री के ऊपर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि इट गेट्स द सनलाइट एंड इट गेट्स द rain from the sky. So what happens is that this rain and this sun, basically they are helping the epiphytes to grow. So epiphytes are able to grow, but they are not harming the mango tree and they are not making the mango vulnerable. So in this case epiphytes are gaining, but mango is neither gaining nor losing. So we can say that it is a case of commensalism. In predation what happens, one gains, the other loses. In amensalism what happens, one loses, the other remains as it is. In commensalism what happens, one gains, the other does not gain, neither is it harmed. Mutualism what happens, in this case both are gaining. So in this case we are having epiphytes growing on mango tree and this is a case of commensalism. Similarly NCERT ने ये भी कहा है कि जो barnacles grow करते हैं whale के ऊपर, so even that is a case of what, barnacles that are growing on whale, that is again a case of commensalism, because whales are neither harmed nor gained but barnacles are gaining in this case. Find the correct statement. In human pregnancy, the major organ system are formed at the end of 12 weeks. तो major organ systems क्या 12 weeks पे आते हैं? ये statement correct है। क्यों? क्योंकि NCERT states कि यार फर्स्ट मंथ में हमारे पास हर्ट आ जाता है, सेकेंड मंथ में हमारे पास लिम्स आ जाते हैं, थर्ड मंथ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, थर्ड मंथ या ट्राइमेस्टर अगर बात की जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 12 वीक्स में आ जाती है, तो इस थर्ड मंथ में क्या होता है कि मेजर ऑर्गन्स लाइक जेनिटेलिया इज फॉर्म्ड। इन द फिफ्थ मंथ एनसीईआरटी स्टेट्स दैट देयर इज मूवमेंट, मूवमेंट देखने को मिलती है। मूवमेंट के साथ और भी क्या है कि हेयर ऑन हेड, ओके, सो हेयर ऑन हेड आ जाता है एंड देयर इज मूवमेंट। ओके, अब यार देखो सर बन गया है, तो अब नेक्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसमें आईलिड्स विल सेपरेट एंड बॉडी में हेयर्स आने लगेंगे हल्के हल्के। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर विच इज बेसिकली द सिक्स्थ मंथ। ओके, ये थर्ड था, ये सिक्स्थ हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, द बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड इन द नाइन्थ मंथ। ये बेसिक चीज़ें जान लिया हमने। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट स्टेट्स इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। ये तो गलत है ना, ये क्लैश कर रहा है। देखो 12 वीक्स पे करता है, नॉट इन 8 वीक्स। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म्ड इन 1 month of gestation, या बिल्कुल करेक्ट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. Even this statement is correct. So, leaving B को हटाते चलें तो हमें देखने को मिलेगा this option is correct. A, C, D and E only. देखो यार ये एक NCERT की डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा ये है, इसमें हमें बायोरिएक्टर का वो पार्ट बताना है जो कि फोम ब्रेकर के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम A is the impeller, B is the motor, C is the foam breaker and D is for sterile air. ये पाइपलाइन है स्टेराइल एयर के लिए। ओके, सो हमें बताना है कि फोम ब्रेकर के तौर पे हमें किसे यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे C को यूज़ किया है, ऑप्शन 2। ऐसे NCERT की डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर थी। ऐसे ही स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर भी देखने को मिलती है, तो इसकी भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी। फ्रॉग्स जो होते हैं ये वाटर में NCERT स्टेट्स कि दे रेस्पायर बाय स्किन, दैट इज दे हैव अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन देयर, बट बक्कल कैविटी इज नॉट एक्टिव इन वाटर। एंड सो वी कैन से कि ये पहला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है कि वाटर वाला गलत है। एंड ऑन लैंड स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स, तो हाँ स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स तीनों ही एक्टिव रहते हैं ऑन लैंड। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट
द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। तो यार दो स्टेटमेंट्स दी गई थी, इसमें से फॉल्स है हमारे लिए वाटर के लिए एंड ट्रू जो है स्टेटमेंट ये लैंड के लिए है, राइट। सो विल गो विथ ऑप्शन 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स। अब ये स्टेटमेंट्स हमें एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स के रिगार्डिंग आंसर करने हैं। इट कॉजेज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। तो यार प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है, तो पहली चीज़ ये है कि ये जो एड्रेनल मेडुला है ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स इन द केस इज कैटिकोलामीन्स। तो कैटिकोलामीन्स हैं हमारे पास एंड दीज आर व्हाट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूपिलरी डायलेशन। इट इज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। यार दिस इज नेचुरल क्योंकि कैटिकोलामीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास ग्लूकोज होना ज़रूरी है, तो ग्लूकोज विल इंक्रीज। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन। तो हाँ ये पाइलो इरेक्शन करता है, या जब भी हम फाइट करते हैं, एंग्री होते हैं, या अदरवाइज अगर हम लोग कभी भी किसी से डरते हैं, फियर होता है या फिर रेज होता है, इन केसेस में पाइलो इरेक्शन हमें देखने को मिलता है। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हर्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो यार हाँ, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ हर्ट कंट्रैक्शन। सो दोनों चीज़ें सही हैं यहाँ पर। तो ये भी सही है, ये भी सही है एंड इवन ये भी सही है, लेकिन प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन के बजाय यहाँ पर होता है प्यूपिलरी डायलेशन। सो विल skip option A and we'll go with B, C and D. Moving on to the next question. Read the following statements on plant growth and development. Parthenocarpy can be induced by auxins. तो यार हाँ, पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन्स इंड्यूस कर सकता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट हम बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बाय इंड्यूसिंग ऑक्सिन्स। ओके। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। तो हाँ यार, एनसीईआरटी ने कहा है कि दो तरीके के हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं पीजीआरस में। एक होता है वो जो प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करता है और एक वो जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर अगर हम देखें तो वो है ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। वेयर एज इनहिबिशन जो है ना वो मेनली एब्सिसिक एसिड करता है। एंड एनसीईआरटी ऑल्सो स्टेट्स कि हमारे पास जो पीजीआर है इथाइलिन वो दोनों ग्रुप्स में फिट करता है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। तो इवन इथाइलिन इज लार्जली एन इनहिबिटर। तो नाउ टॉकिंग अबाउट डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। देखो हमारे पास कोई सा भी पैरेनकाइमा होता है, तो पैरेनकाइमा एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, पैरेनकाइमा मान लेते हैं। इट विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, इट विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन as in case of cork cambium और interfascicular cambium। तो पैरेनकाइमा था हमारे पास, इट अंडरवेंट अ डी डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब ये क्या हो गया, इट विल हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइक फंक्शंस, दैट इज इट विल अगेन गेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड इट विल नाउ अगेन वंस अगेन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टिश्यूज। ओके, एंड वंस दिस टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड, तो अब ये टिश्यूज में भी क्या होगा कि कुछ टिश्यूज स्पेशलाइज करने लगेंगे। स्पेशलाइज जब करेंगे अपने फंक्शन में, तो इन दैट केस इट विल अगेन अंडरगो व्हाट, रीडिफरेंशिएशन एंड दे विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो फिर अगेन वंस अगेन दे विल लूज डिवाइडिंग एबिलिटी। तो ये जो है एक सीक्वेंस में हो रहा है ना, तो डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। जब तक ये डी डिफरेंशिएशन नहीं होता तो रीडिफरेंशिएशन होता ही नहीं। अगर डी डिफरेंशिएशन ना हो तो इन दैट केस क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशिएशन हुआ रहता, राइट, एक डिफरेंशिएशन हुआ रहता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ए, बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट डी एंड ई, abscisic acid is a plant growth promoter. No, abscisic acid as I said it is a plant growth inhibitor. It's the main plant growth inhibitor. ये stress hormone होता है ना। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं। एपिकल डोमिनेंस अगर कह रहा है तो ये क्या करेगा कि एपिकल बर्ड्स विल बी ग्रोइंग डोमिनेंटली, दे विल बी प्रोमोटेड इन दिस केस। तो यहाँ पर हम आएंगे ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? So देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ना कि hormones are being released from pituitary but they are being synthesized in the hypothalamus। तो NCERT ने कहा है बहुत ही क्लियरली कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, that we also called as ADH, तो ये दो हार्मोन्स जो हैं
इन्हें हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली। एक्सोनली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया एक्सन्स emerging from the hypothalamus to the pituitary, that is the posterior pituitary, we also call as neurohypophysis, right? So इस केस में हमारे पास FSH तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से है तो ये नहीं होगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से है, ये भी नहीं होगा, इवन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, ये आंसर होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of a non-distilled alcoholic beverage produced by yeast? तो is it beer, rum, whiskey or brandy? Frequently repeated question. तो NCERT ने कहा है कि wine and beer ये दोनों जो हैं these are non-distilled, while whiskey, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth. तो in this case wine तो नहीं दिया हुआ है but we'll go with beer as it is non-distilled. What is the pattern of inheritance for polygenic traits? तो यार polygenic traits होता क्या है? NCERT ने कहा है कि there are many traits that are not so distinct and are spread across a gradient. ऐसा है ना कि बहुत से ऐसे traits होते हैं जैसे कि skin color. So what happens is that कुछ लोग होते हैं white, कुछ होते हैं black, and इसमें भी कुछ होते हैं wheatish. तो ऐसा है ना कि पूरा gradient एक exist कर रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक dominant हो जाएगा, एक recessive हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो मेंडल्स स्टडीज बेसिकली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स. ऐसा था कि वो बिल्कुल ही डिस्क्रीट थे, जैसे कि फ्लावर कलर हो गया इधर पर्पल और वाइट, पी के केस में गार्डन पी विच ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन, उसमें हमने देखा था कि इधर इट वाज पर्पल और वाइट, बट नाउ इन इफ वी लुक अराउंड देयर विल बी मेनी ट्रेट्स दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट. ओके, तो ऐसा है ना कि अगर हम बाहर देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि स्किन कलर जिसमें एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है, देयर इज नो डिस्क्रीट डिफरेंस. तो ऐसे ट्रेट्स जो कि जनरली कंट्रोल होते हैं दो या दो से ज़्यादा जीन्स से, उसे हम कहते हैं पोलीजेनिक ट्रेट्स. तो इस केस में मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. इट इज़ नीदर ए केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि इसमें एक्स लिंक्ड कुछ है ही नहीं. इसमें क्या है कि अलग अलग जीन्स हैं, मोर देन वन जीन है जो कि एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो दिस इज अ केस ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो यहाँ पर हम हेड देखें तो हेड क्या कंसिस्ट करता है? हेड कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस और द जेनेटिक मटेरियल. सो विल गो ए विथ 4. तो बी का 3 तो जा ही रहा है. मिडिल पीस कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी, तो बी का 3 भी है. सी का क्या है हमारे पास? एक्रोजोम. एक्रोजोम किस लिए था? दे हैड वेरियस लाइसिन एंजाइम्स, हाइलुरोनिक एसिड वाज देयर, तो एंजाइम्स वगैरह रहते हैं इसमें. सी का हो जाएगा 1 एंड देयरफॉर ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. डी का तो 2 होना ही है ना, क्योंकि बिकॉज टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म मोटिलिटी. द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. देखो यार 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं. एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक, एक होता है असिमेट्रिक. तो एनसीईआरटी ने इनकी एग्जांपल्स दी हुई है. जाइगोमॉर्फिक वो होते हैं जिनमें हमें बाइलैटरल सिमेट्री दिखती है. एक्टिनोमॉर्फिक वो होती है जिसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. एंड असिमेट्रिक वो होती है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, कैन नॉट हैव सिमेट्री. सो कैन नॉट से हम याद रख सकते हैं कन्ना. जाइगोमॉर्फिक हमारे पास क्या है? पी हो सकता है, बीन होता है, गुलमोहर होता है एंड केशिया होता है. वेयर एज मस्टर्ड, चिली एंड डैट्यूरा फॉल अंडर एक्टिनोमॉर्फिक. तो अब इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं ना. जाइगो में कौन आ रहा है हमारे पास? पी आ रहा है, वेल चिली, पेटूनिया एंड डैट्यूरा दे डोंट फॉल. सो जाइगोमॉर्फिक में पी के साथ हम जाएंगे. Which of the following organisms cannot fix nitrogen? Option A, Azotobacter. Option B, Oscillatoria. C, Anabana. D, Volvox. E is Nostoc. तो इस केस में एजोटोबैक्टर तो हमारे पास एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वेयर एज ऑसिलेटोरिया, एनाबैना एंड नोस्टोक, दीज 3 आर ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया.
Cyanobacteria, as we know, they have a special feature of fixing nitrogen because इनमें heterocyst पाया जाता है. So the remaining option is D, which is a colonial green alga. It does not fix nitrogen. Which of the following is an example of ex situ conservation? तो यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीट होता है. जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स, एज एवरीवन नोस, दिस इज द आंसर. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो ये कुछ एरियाज जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि ऐसे एरियाज जो हम लोग सेक्रेड मानते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्रेड ग्रोव्स हो सकता है, तो वो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वो भी इन सिटू में आता है. नेशनल पार्क हमारे पास, जस्ट टू टेल यू, 90 होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास 448 हैं. ओके, ऑल्सो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर. Who is known as the father of ecology in India? The answer is Ramdev Mishra. He is the one who established teaching and research in the ecology department of BHU. So this question signifies कि कितना ज़्यादा relevance है NCERT के हर एक पेज का, इवन जिसमें साइंटिस्ट्स एंड नोवेलिस्ट्स के बारे में mentioned है, even that is important for NEET. Given below are two statements. In the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out the essential life processes. RNA acts as, statement 1, genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living systems. Being reactive, RNA is unstable. RNA reactive है and that is why it is unstable. तो यार देखो, RNA वर्ल्ड में ही हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइमरीली इसे हम फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहे थे एंड इसे हम कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं एज राइबोजाइम, राइट. तो इसे हम रिएक्टिव इसलिए कहते हैं, अनस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपेयर टू डीएनए अगर हम देखें, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, राइट. ऐसा क्यों है? क्योंकि आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं ताकि वो डीएनए बन सके. तो एक आरएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की वजह से वो डीएनए हो जाता है? पहला तो यार उसमें जो है ना 2' ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है, दैट इज रिमूव्ड. ओके, द सेकेंड थिंग इज 5-methyl यूरासिल का प्रेजेंस इंस्टेड ऑफ सिंपली यूरासिल. ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. एंड द थर्ड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मेकिंग इट डबल स्ट्रैंडेड. ओके, तो अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं. डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल. बिल्कुल सही है. इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म. हाँ, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, तो ये चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं. एंड क्योंकि इन्होंने कुछ रिपेयर मैकेनिज्म्स भी इवॉल्व करके रखे हैं. तो यार डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स तुम लोग आगे पढ़ोगे, इवन बायोकेमिस्ट्री में भी आएगी तुम लोगों की. दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू लर्न मच अबाउट फॉर नीट. ओके, सो इन दिस केस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Given below are two statements. Statement 1, transfer RNAs and ribosomal RNA do not interact with mRNA. तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफर RNA, जिसको हम tRNA कहते हैं, एंड राइबोसोमल RNA, जिसे हम लोग rRNA कहते हैं, दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ mRNA. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना. ट्रांसलेशन जो एक प्रोसेस है, tRNA, rRNA एंड mRNA के इंटरैक्शन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि tRNA डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विथ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बाय रीडिंग द कोडोन्स एंड डिलीवरिंग अमीनो एसिड. क्योंकि ये कोडोन्स को रीड करता है, ये जो कोडोन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं वो इसे रीड करता है. mRNA पे जो कोडोन्स रहते हैं, ठीक है, वो इसे रीड करता है एंड इट डिलीवर्स अमीनो एसिड्स. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ rRNA? दैट इज राइबोसोमल RNA. दिस राइबोसोमल RNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द राइबोसोम विच बाइंड्स टू द mRNA. दिस विल बाइंड, इसका एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है ना. तो दीज बाइंड्स एंड दे विल हेल्प इन डिकोडिंग ऑफ द प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन डिकोडिंग में हेल्प करता है. ऑल द थ्री combined they constitute and help in the process of translation. RNA interference takes place in all the eukaryotic organism as a method of cellular defense. ये NCERT की लाइन है. So this RNA interference, it involves silencing of specific mRNA
ड्यू टू complementary double-stranded RNA that binds and prevents translation. एनसीईआरटी की लाइन है कि साइलेंस करता है ये mRNA को ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन. तो ये आरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाता है. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है आरएनए का, सो दिस विल ज्वाइन विद द अर्लियर स्ट्रैंड एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, सो दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो ये ट्रांसलेशन में नहीं जा पाएगा. तो ट्रांसलेशन में नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि ये कभी प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ओके, सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. हार्ट के राइट एट्रियम से निकलता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एंड दिस इज द वन विच लोअर्स द बीपी. ओके, इट्स अ हार्मोन. किडनी के जेजी सेल्स से रिलीज होता है एरिथ्रोपोएटिन एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आरबीसी काउंट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रेटिन, सीसीके एंड इवन गैस्ट्रिन. एड्रेनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है. दिस इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ऑप्शंस के साथ अगर हम जाएं तो ए का 3 हो रहा है, बाकी तो ऐसे ही सही हो जा रहा है ना. बी का 1 आ रहा है, सी का 4 आ रहा है, सब आ जा रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर. एनसीईआरटी स्टेट्स कि ये जो साइक्लोस्टोमास होते हैं दे आर ऑल एक्टोपैरासाइट्स दैट फीड ऑन फिशेस. सो व्हाट डू दे हैव? दे हैव सकिंग सर्कुलर माउथ. इनका एक सकिंग सर्कुलर माउथ ऐसा होता है एंड इसमें जॉज नहीं होते हैं. दे आर जॉलेस. वी कॉल देम एग्नेथा. इसके एग्जाम्पल में आता है पेट्रोमाइजन एंड लैम्प्रे. स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और ये बहुत बार रिपीट हुआ है. इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स. ओके, इट्स अ क्लॉट बस्टर. ये हम लोग कब यूज करते हैं? ये हम लोग ऐसे नॉर्मली क्लॉट बस्टर के लिए यूज नहीं करते हैं. हम लोग ये तभी इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज अ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और कोरोनरी थ्रोम्बस. कोरोनरी आर्टरी में कहीं पर भी एक थ्रोम्बस अगर क्रिएट हो जाए तब हम लोग यूज करते हैं. दैट इज व्हेन द सिचुएशन इज फेटल, तब हम लोग इसे यूज करते हैं. ओके, इट्स यूज फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकिनोडर्म्स इज. तो यार एनसीईआरटी ने कहा है कि इसके 4 रोल्स हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के. पहला तो लोकोमोशन है, दूसरा है कैप्चरिंग ऑफ प्रे, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द फोर्थ इज रेस्पिरेशन. इन ऑप्शंस में रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यही 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ए एंड सी में. तो विल गो विद ऑप्शन 4. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो यार इस क्वेश्चन में हमें ये रियलाइज होता है कि यार हर एक एग्जाम्पल की क्या वैल्यू है. क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल्स भी पता है तो इसमें तुम इजीली +4 उठा लोगे. कैसे? तो टेरिडोफाइट में हमारे पास कौन आता है? सेलाजिनेला, साल्विनिया, इक्विसेटम एंड फर्न्स. ब्रायोफाइट में हमारे पास कौन आता है? पोलीट्राइकम आता है. एंजियोस्पर्म में हमारे पास सैल्विया आता है एंड जिम्नोस्पर्म में हमारे पास जिंको आता है, जिंको बाइलोबा. सो इन ऑप्शंस में अगर हम मैच करें, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा एंड डी का 2 हो जाएगा. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. Which are correct. Computerized tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. So CT scan जो होता है या MRI जो होता है, they are useful in detecting cancers of internal organ. This is correct. Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. यार कीमोथेरेप्यूटिक्स तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, so that we can kill the cancerous cells. We are not using it against the non-cancerous cell, even though कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है कि कुछ नॉन कैंसरस सेल भी अफेक्टेड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल बोन मैरोज आर समटाइम्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स. स्टेटमेंट सी स्टेट्स अल्फा इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है क्योंकि अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. ओके, तो ये क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम जो नेचुरली जो ऐसा है ना कि ट्यूमर सेल्स उसको एस्केप कर जाते हैं. ट्यूमर्स कैन अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम. सो अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड इन दिस केस एज एनसीईआरटी स्टेट्स, क्योंकि ये क्या करता है कि ट्यूमर को ऐसे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एनसीईआरटी स्टेट दैट अल्फा इंटरफेरॉन्स आर दी biological response modifiers. Okay, so A and C are correct. Option 2.
व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ IVF? IVF को हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस केस में होता क्या है कि हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ग्लास में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ओके, दैट इज आउटसाइड द वूम। तो इस केस में मदर को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ऑल्दो इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज देयर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स आर यूज्ड, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग द डोनर्स। सो दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि कोई भी डोनर हो सकता है, गैमेट्स को कोई भी डोनेट कर सकता है, सो दैट दे कैन हैव अ चाइल्ड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, हाँ, इसकी वजह से ऑर्फेंस को कम अडॉप्ट किया जा रहा है एंड दे आर बीइंग जस्ट लेफ्ट आउट। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज रॉन्ग। IVF method is available in India. Possibility that the early embryo does not survive. So this statement is correct. इसमें failure के chances भी हैं. So we'll go with B, D and F. Consider the following. Reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. This statement is completely true क्योंकि reductive division यहाँ पर meiosis को हम लोग कह रहे हैं, and यहाँ पर ह्यूमन फीमेल में गैमेटोजेनेसिस अर्लियर स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू मेल। क्योंकि अगर हम लोग ये देखें पूरा म्यूसिस का प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन फीमेल्स, तो यहाँ पर होता क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास oogonia जो है दैट इज द 2n, it will give rise to primary oocytes. These primary oocytes will further undergo first meiotic division, leading to the formation of a first polar body and a secondary oocyte, after which this will undergo another meiotic division, which is the second meiotic division. So this will form a second polar body and ovum. तो important इसमें क्या है, इसमें important ये है कि हमें इसकी टाइमलाइंस पता रहनी चाहिए। जैसे कि ये तो फीटल लाइफ में हो रहा है, हमारे पास प्राइमरी oocyte तो बन जा रहा है फीटल लाइफ में। सो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यहाँ पर भी अभी क्या है कि 2n ही था, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, ये प्राइमरी oocyte 2n था, अब ये सेकेंडरी oocyte n हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी n हो गया, सेकेंड जो होता है हमारे पास म्यूटिक डिवीजन, इसमें भी n रह जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि फीटल लाइफ के बाद क्या होता है, हमारे पास बर्थ आता है ना, बर्थ, उसके बाद फिर जो भी डिवीजन वगैरह है ये अरेस्टेड हो जाता है, राइट। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में क्या हो गया, अरेस्टेड हो गया। एंड देयर आफ्टर क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आता है तब जाकर ये स्टार्ट होता है, राइट। तो सेकेंडरी oocyte फिर बनता है एंड दैट इज रिलीज्ड। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जो है वो कब कंप्लीट होता है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट्स ओनली व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ओके। सो दीज आर द कंडीशंस। तो ये एडल्ट लाइफ में हो रहा है, ये फीटल लाइफ में हो रहा है, ये बर्थ का पीरियड है और उसके बाद फिर प्यूबर्टी का पीरियड है, तो हमने ये डिमार्केट किया है ना यहाँ पर। सो नाउ लुकिंग बैक टू द क्वेश्चन, so meiotic division for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis. बिल्कुल सही है, ह्यूमन फीमेल में gametogenesis will start earlier than that of male gametogenesis. ये बिल्कुल पहले स्टार्ट हो जा रहा है कंपेयर टू मेल्स, जहाँ पर एक बार स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में तो बिल्कुल रैपिडली होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं अरेस्ट हो जाता है, ओके। नाउ सेकेंड statement is the gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to female. ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा कि फीटल लाइफ में ही बर्थ के टाइम पे ये अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज 1 में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अरेस्ट हुआ था, देन अगेन सेकेंड म्यूटिक डिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पर अरेस्ट तो होता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, बिल्कुल भी नहीं। देखो प्राइमरी oocyte हमारे पास पहले से था, जब फर्स्ट पोलर बॉडी बना तो उसके साथ हमारे पास एक सेकेंडरी oocyte बना, राइट। तो ये वाला प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। Now luteinizing hormone that is LH surge leads to the disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding, बिल्कुल भी नहीं यार, LH surge की वजह से तो ओव्यूलेशन होता था ना। एंड यार अगर हम बात करें एंडोमेट्रियल लाइनिंग की डिटेरियोरेट होने की, डिसइंटीग्रेट होने की और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, तो ये तब होता है जब वी टेक अवे द प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जब खत्म हो जाता है, लाइक जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, वो डिजेनरेट कर जाता है, तब जाकर ये एंडोमेट्रियम भी डिजेनरेट कर जाता है। सो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, so A and B are true. In bryophytes, the gyma help in which of the following? तो NCERT कहता है asexual reproduction
in liverworts, that is a bryophyte, takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gyma. So this is stated by NCERT. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि लिवरवर्ट एक ब्रायोफाइट ही है, उसमें या तो थैली से होगा या तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गीमा. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इन ब्रायोफाइट्स द गीमा हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल्स. हाँ भाई, इसे हम पुलिस मैन भी कहते हैं और ये पैकेजिंग में भी हेल्प करता है. ओके, मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर्स इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल. तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये पैकेजिंग में हेल्प करता है. जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ये उसकी पैकेजिंग करता है. ओके, और उसे या तो इंट्रासेलुलर टारगेट में देगा या तो सेल के बाहर कर देगा. Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. बिल्कुल सही है. Cis phase is the forming phase and trans phase is the maturing phase. Assertion is correct and also the reason is correct and the reason is satisfying the assertion here. So this was the first part. I'll be uploading the next part soon. If you've made it till the end, that's perseverance. Now go boost your rank.